ऑफ एडवांस लेवल लास्ट लेक्चर, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं देखते हैं ज़रा। Okay, good. Okay, so class, this will be our last lecture. Here we are going to learn something, related with the effective communication skills, as we have added this just to make sure to give you the idea about the proper and professional style of communication, because we are going to learn English and we have learned in English in the style of native English speaking. So that's why it is being added there. Okay, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर some etiquettes, okay, and those etiquettes are, just a minute, who is this person? अच्छा जी, ओके तो एटिकेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रोफेशनली यू विल हैव टू मेक श्योर कि योर कम्युनिकेशन इज़ गोइंग प्रॉपर, if you are talking with your bosses or if you are talking with some clients, okay, foreigner हो वो चाहे या local हो, okay, so first of all you will have to listen to them actively. अब ये listening ज़रूरी नहीं है, it is linked with only the professional things, okay, in the personal settings too you will have to listen actively. एक होती है active listening, एक होती है passive listening. ओके, पैसिव लिसनिंग इज़ जस्ट लाइक हेयरिंग. हेयरिंग क्या होती है कि सिर्फ आप सुन रहे हैं. जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो हम म्यूज़िक सुनते में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस हम सुन रहे होते हैं, ठीक है. लिसनिंग का मतलब है कि आप अपना ध्यान लगा के, अपना दिमाग लगा के सुन भी रहे हैं, ठीक है. तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि आप उसे सुन भी रहे हैं और अपने माइंड में प्रोसेस भी कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रही है वो बात. लेकिन अगर पैसिव लिसनिंग है, सो दैट मीन्स कि आप एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से वो बाहर जा रही है, ठीक है. सो दैट इज़ not a good way. You will have to listen to actively whatsoever you are going to do in your communication. Okay, so if you are talking with some client online, जैसे for example अगर आप किसी client से बात कर रहे हैं, so at that time अगर आपको उनकी requirements पूरी समझनी है कि what they want you to do or what their projects are or something else, so you will have to listen to them actively. Okay, and also to understand English and its other things related with the speaking, you will have to listen to the English speaking actively to the person who is talking to you. Okay, या फिर आप जिसको भी listening कर रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं, at that time you will have to listen to actively. After that you will have to speak clearly and confidently. Confident can take you up, and lack of confidence can make you down. Okay, so that is the thing with the confident. और कॉन्फिडेंट का एक लेवल है, वो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना चाहिए. कॉन्फिडेंट यू कैन स्पीक क्लियरली इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट इंग्लिश वेल, तब भी आप आराम से बात कर सकते हैं. आपने देखा होगा ना कि नॉर्मली सम पीपल हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे कैन टॉक विद द पीपल नॉर्मली. ओके, एंड they can make their communication strong. So that is why, because they have the ability of being confident in themselves and they can talk with the people. Okay, and after that when we talk about when you are talking something, let's suppose कि you are taking a project, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला क्लाइंट से, द क्लाइंट इज फॉरेनर और आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं. एट दैट टाइम you do not understand something or you want something to understand, to make understand the client. Okay, so at that time you must be clear yourself and concise. बहुत लंबी बात नहीं करनी होती, बल्कि क्लियरली आप उससे बात करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम नहीं करना और आप उसे कह रहे हैं कि नहीं मैं 1-2 दिन में करके दे दूँगा. अदर देन दैट, अगर आपने काम नहीं करना, आपके पास कोई और जो है वो काम है, तो आप उसको डायरेक्ट बोलें कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस वर्क एंड आई कैन नॉट डू दिस वर्क within 2 days. It will be taking around a week or just the other thing. तो क्या है, miscommunication नहीं होनी चाहिए. It must be a clear communication. And after that, if you are not clear for anything, let's suppose कि आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, so at that time the interviewer is asking you the questions and you are talking with them. So at that time you are not clear about your job description या जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में.
और आप कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यू डू नॉट आस्क द क्वेश्चन। तो अब क्या होगा कि अब जो बाकी आपका जो काम, जब आपके ऊपर काम पड़ेगा ना, तो एट दैट टाइम यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं बात क्या करूं और मैं काम क्या करूं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली गुड कि यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन, एंड इट इज़ अ वेरी you know good thing for the native English speakers if you ask them the questions, so they will be taking it positive. जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना कि we do not ask the questions to our bosses, इसलिए क्योंकि ये हमारे जो एक कल्चर में ना ये चीज़ हमें जो है वो हमारे लिए अलाउ नहीं होती कि हम अपने बॉसेस से क्वेश्चन करें. बट फॉर द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यू विल बी आस्किंग दैम द क्वेश्चंस. that will be a good and positive sign from your side to them. ठीक है, सो दैट इज अ गुड थिंग. ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. जैसे आफ्टर एवरी मीटिंग यू विल बी सेइंग कि इट वाज वेरी नाइस मीटिंग विद यू, वी विल बी मीटिंग सून. जैसे हम नॉर्मली वैसे भी कैजुअल मीटिंग्स में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब कह रहे होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन थिंग. आफ्टर दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है. We talk about the communication style to adopt for different audiences. Let's suppose you are working in an office and in the way you are talking with your bosses, okay, that is something different. But if you are talking with a peon or a worker in the office who just serves you the tea, so you will be talking with them differently. Okay, I am not talking about different in the sense of manners. I am talking about different in the sense of tone, just tone. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने बॉसेस से बहुत प्रोफेशनल होके आप जनाब से बात करते हैं. तो जो वर्कर है उससे भी आप जनाब से आप बात करें, लेकिन आपकी टोन फ्रेंडली हो सकती है. ओके, सो दैट इज़ द वे कि यू विल बी जस्ट वॉचिंग द ऑडियंसेस एंड आफ्टर दैट. अच्छा, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली, सो हमारा प्रोफेशनली बात करने का अंदाज चेंज होता है. लेकिन जब हम घर में बैठे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो एट दैट टाइम वी चेंज आवर कम्युनिकेशन स्टाइल. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग रिलेटेड विद दैट. सो वी कैन do it well, and that is a good way to have a proper kind of communication. And after that you will have to understand and show empathy. Empathy means ke you will be kind to that person and you will be open to listen to the things. ठीक है, so that is a good way to being effective in the communication. And after that, when we manage emotions effectively, class, all these things what we are learning here related with the native English speakers, these are all the communication etiquettes are there in our own religion, but we do not follow them. ठीक है, कौन फॉलो करता है उसे, फॉरेनर्स फॉलो करते हैं. ठीक है, and that is the thing कि we will have to manage our emotions. We should not show our anger at the moment, and we should not show our any other kind of emotions in front of the people when we are talking with them. That is not a good way. Okay, so ये जो है बहुत important चीज़ है. when you talk with the native English speakers, they really count this thing. Okay, and they do not show you the their anger or something else. Okay, let's suppose कि if you are not able to complete their project on the time, on the deadline. ठीक है, so at that time when you tell them कि I'm sorry I could not do it, तो if they are going to reply you, अगर उन्हें मना भी करना होगा, तो they will be replying you in a very good words. Okay, I will be reaching you next time. Okay, because I will have to complete this work on a deadline, so I will be giving this to any other person. Okay, तो वो इस तरह आपको रिप्लाई करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बोले आपको मैंने ही काम दिया था और आपने ये काम अभी तक नहीं किया. ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो दे विल manage their emotions and they want you to manage your emotions. And after that, maintain open and honest communication. ये बात हमने पहले भी शायद पढ़ी. अच्छा, मैं कंटेंट राइटिंग में ये बात ज़्यादा बोलती हूँ. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग कि वी विल हैव टू बी फेयर एंड वी शुड नॉट मेक द थिंग्स फेक और स्कैम. ठीक है, तो इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन भी ओपन एंड ऑनेस्ट होनी चाहिए. आफ्टर दैट क्लास, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. दे कैन बिल्ड योर रिलेशनशिप पर्सनली, ऑफ कोर्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफ कोर्स,
and achieving success in personal and professional settings. That is a very important way, because communication, everything depends on your communication in this world. Okay, as we all know, man is a social animal. तो ये जो social animal है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक सोसाइटी में रहना है, ठीक है, और उस सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको 10 जगह पे कम्युनिकेशंस करनी पड़ती हैं. ऐसा नहीं हो सकता आप बस अपने घर में ही रहें और आप किसी से बात ही ना करें, ठीक है. अगर जो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घर में भी रहते हैं, उनको भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही होता है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द ग्रोसरीज, एट दैट टाइम यू विल हैव टू टॉक विद द शॉपकीपर. Okay, if you are going to buy something related with your breakfast, so you will have to talk with the baker. Okay, so that is the thing related with the social settings. ठीक है. Okay, after that, when we talk about our body language, it should be appropriate body language. Body language is really important. I think I have told you in the demo class that native English speakers, they do count their body language and also the non-verbal attitude. जैसे कि हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, हम कुछ ऐसे साइंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना अपने हाथों के, हम थम्स अप करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया तुमने काम, ठीक है. तो इस तरह से व्हेन यू यूज़ योर पोस्टर्स एंड जेस्चर्स और द बॉडी लैंग्वेज, तो दीज आर मच काउंटेबल फॉर द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. ओके, दे वॉन्ट यू, इफ़ यू आर टॉकिंग प्रोफेशनली, they want you to look professional. Okay, if you are looking just like the casual person, then you can be the casual. Okay, so the thing is that you will have to go with the norms of the body language, and these are related with the maintain eye contact. That is really important. अगर आप किसी से बात करें और आप उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करें, तो दैट मीन्स, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दैट पर्सन. ऐसे ही होता है ना, हम पर्सनली भी किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर हम बार बार इधर उधर देख रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उससे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, सो वी विल हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, एंड आफ्टर दैट बी अवेयर ऑफ योर टोन ऑफ वॉइस. सो you will have to know, that is also a norm in our society too, that we will have to maintain the tone of the voice. What if you are talking with the subordinate at your office or something, somewhere else, okay. So these are something related with the effective communication strategies related with the native English speakers, okay. Hopefully you understand these things. Now class, there is a card. अच्छा, ये कार्ड आपको क्या शो करेगा कि सम बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स हैं कि हाउ यू विल हैव टू सिट, हाउ यू विल हैव टू स्टैंड, हाउ यू विल हैव टू शेक हैंड. दैट इज ऑल्सो अ गुड जेस्चर ऑफ योर बॉडी. क्योंकि क्या होता है कि वो लोग जो कि बहुत फर्मली हाथ हैंडशेक करते हैं ना, दीज पीपल आर सो सिंसियर. ओके, तो उन्हें सिंसियर समझा जाता है, और जो जल्दी से हाथ में ला के हटा लेते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट सिंसियर पीपल. ओके, सो वी विल हैव टू वॉच आउट ऑल दीज बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स टू आवर सेल्व्स, ठीक है. सो आई विल बी शेयरिंग दिस कार्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू विल बी वॉचिंग के इसमें और जो भी पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं जस्ट. ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स, सो बॉडी लैंग्वेज के डूज एंड डोंट्स हैं ये, ठीक है. सब फर्स्ट थिंग इज रिटन हेयर कि मेक योर आई कॉन्टैक्ट. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. और इसी तरह से डोंट्स में आ रहा है कि डू नॉट ब्लिंक टू मच. अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग कर रहे हैं, अपने पलके झपकाए जा रहे हैं, सो दैट मीन्स के अगेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड. ओके, फिर उसके बाद मज़ीद इसमें कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं. यू कैन जस्ट read them and you can just follow them. Okay, so whenever you are standing somewhere, so the proper standing style is this, not this one, ठीक है. तो it is shown in the picture too. Okay, तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर लीजिएगा. आफ्टर दैट क्लास, यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ. ये लिंक्स मैं आपको भेजूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो यू विल बी जस्ट वॉचिंग दैम. अच्छा, यहाँ पर क्या है क्लास, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आपने विज़िट करना है ऑन एंड ऑफ, और जिनको जो है आपने यूज़ करना है फॉर योर स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड इंग्लिश प्रैक्टिस. अच्छा जी, इसको हमने कॉपी नहीं किया था. Ellison.com क्लास, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देयर आर वेरी
effective courses are here, so you can just explore courses. Communication से related भी हैं, English language से related भी हैं, so you can just watch out for these courses. And there are many free courses too, so यहाँ पे paid भी हैं लेकिन free courses भी हैं, so you can just discover the courses. और सिर्फ English और spoken English और communication से related ही नहीं, बल्कि देखिए कितनी सारी fields हैं यहाँ पे, तो आपने जिस भी फील्ड में काम करना है उस फील्ड से रिलेटेड यू कैन जस्ट गेट द कोर्स, ठीक है। एक वेबसाइट ये है ellison.com, दूसरी है futurelearn.com। अच्छा, इस वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा class, this is also again same like the website. There are many courses and you can get the degrees too. मतलब these are the many of them are the paid one, but you can just go for the free courses too. और यहाँ पे कुछ टेस्ट भी होते हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं for practicing your English speaking or listening too, ठीक है। So that would be good for you. Okay, you can just discover these websites, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली, और एंड वी डोंट हैव मच टाइम, तो दैट्स वाई आई विल बी शेयरिंग द लिंक, सो यू कैन जस्ट डिस्कवर योरसेल्फ कि यहाँ पर क्या क्या है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, फ्री फॉर टॉक। इस वेबसाइट में क्लास यू कैन जस्ट लिंक विद एनीबडी इन द होल वर्ल्ड, अब वो चाहे कहीं से भी हो, उसको अगर इंग्लिश में बात करनी होगी आप भी उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, हर तरह के लोग इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो यू कैन जस्ट टॉक विद देम। और चाहे तो आप फॉरेनर इंग्लिश स्पीकर से भी यहाँ पर लिंक होके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं, देखें आपको नज़र आ रहे हैं, इंडोनेशियंस हैं 43, बंगाली हैं, अरबिक हैं, उर्दू से रिलेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट टॉक विद द पीपल यू वांट। यहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, उनके साथ लिंक करके यू कैन टॉक विद द पीपल। मतलब एक तरह से ये सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ योर इंग्लिश। अच्छा जी, italki.com, इसको देखते हैं हम एक मिनट। अच्छा जी, हम यहाँ पर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि italki पे क्या है। italki पे भी इसी तरह से यू कैन लिंक विद द पीपल, ठीक है। कुछ पेड वर्जन्स भी हैं इसमें, तो आपने खुद से डिस्कवर करना है कि आप किस तरह, आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, एंड इन द कम्युनिटी यू कैन टॉक विद द इंग्लिश स्पीकर्स एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस योर इंग्लिश टू। Okay, that is a very good way to talk with the people and also do practice of your English. Okay. Acha, Uzair, these platforms are for kids too, but I will be telling you the special one. That is this. BritishCouncil.pk. क्लास जब आप इस पर विजिट करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग मैनी कैटेगरीज एंड एक्टिविटीज़ देयर। आप लोगों ने कोर्स में जितनी वो करी है ना, लिसनिंग वाली प्रैक्टिसेस, होटल रिजर्वेशन वाली जो हमने करी थी, एक हमने ऑटोमेटेड मैसेजेस की करी थी, तो क्लास वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ से उठाई थी BritishCouncil.pk से, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इतने मज़े की लिसनिंग के, स्पीकिंग के एक्सरसाइजेज और टेस्ट होते हैं कि बहुत मज़ा आता है करने में, ठीक है। और उसके बाद क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ योर लिसनिंग, लेट्स सपोज, तो लिसनिंग आपके जो लेवल है ना लिसनिंग का, आप उस हिसाब से टेस्ट और एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। एक A1 लेवल है जो बिल्कुल बिगनर्स का है, फिर A2 लेवल है, फिर B1 है, फिर B2 है, तो इस तरह से एडवांस लेवल्स हैं। तो यू कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ योर इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये BritishCouncil.pk लाजमी विजिट करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा क्लास, अब एक लास्ट चीज़ जो हमें समझनी है रिलेटेड विद द इंग्लिश स्पीकिंग, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको पता होना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद इफ़ कंडीशनल, ठीक है। इफ़ के कंडीशनल्स होते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे हम बात करते हैं ना उर्दू में। अच्छा, इसमें जो है कुछ कंडीशनल्स हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो रियल होते हैं, पॉसिबल फ्यूचर वाली बात होती है कि उसमें हो सकता है बिल्कुल। और सेकंड कंडीशनल बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है। कैसे? लेट्स टॉक।
जैसे कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आप कहते हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। हमने क्या कहा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये पॉसिबल चीज है, वर्क हार्ड कहीं किया जाएगा तो ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये रियल चीज आ गई इफ कंडीशनल। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर मैं प्रिंसेस होती तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस, इफ आई वर अ प्रिंसेस आई वुड गेट अ लॉट ऑफ ड्रेसेस, बारबी ड्रेसेस, ठीक है। तो क्या है, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ और ना कोई बनने के चांसेस है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रियली इमेजिनरी सिचुएशन जो कि सेकंड कंडीशनल की है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल का जो कि रियल वाली चीज़ है, उसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या है, इफ के साथ जो पहला क्लॉज आता है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। जैसे मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल यूज किया, यू विल गेट सक्सेस। दूसरा जो क्लॉज आएगा वो विल के साथ आएगा और फ्यूचर सिंपल वाला जो टेंस है वो पूरा हम यूज करेंगे। हम कह रहे हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट सिंपल है, आई विल स्टे एट होम ये फ्यूचर का टेंस है। तो इफ कंडीशनल में हम दो तरह से क्लॉजेस यूज करते हैं। इफ के साथ, अगर के साथ जो क्लॉज आता है ना वो हम प्रेजेंट सिंपल रखते हैं और जो दूसरा क्लॉज आता है उसको हम फ्यूचर में ले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सोचें ज़रा और मुझे इनबॉक्स में भेजें, ठीक है, सो दैट यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस जस्ट लाइक दैट कि इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, if my brother comes home we will have ice cream, okay, तो हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे। एंड यू कैन जस्ट से के और क्या बना सकते हैं ज़रा बताइए चैट बॉक्स में। इफ़ यू हैड, नहीं हैड नहीं आएगा उज़ैर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी रिच टुडे, यू विल, नहीं, आप ना बनाना कुछ और चाह रहे हैं, आपने ये वो वाली चीज़ यूज़ करी है जो अनरियल है, ठीक है। हम रियल वाली की अभी बात कर रहे हैं, अनरियल वाले की अभी हम करेंगे। तो जो अनरियल वाली चीज़ होती है उसमें हम हैड के साथ या उसमें हम पास्ट टेंस के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी वाली जो चीज़ होगी ना उसमें हम ये यूज़ नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया ना, इफ़ इट रेन्स आई विल मेक फ्रिटर, ओके फारिया दैट इज़ अ गुड थिंग। इफ़ नो अब्दुल्ला, यहाँ पर गॉट और वुड आपने यूज किया है तो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनरियल, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियल। अभी हम रियल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं इफ आई गॉट अ चांस आई वुड गो टू कश्मीर, इसका मतलब ये है कि आपको खुद इस बात का यकीन नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हैं, यू आर जस्ट मेकिंग कासल इन द एयर। अगर आप इसे कहते हैं इफ आई गेट अ चांस I will go to Kashmir, so that means कि that is a real situation and you have intentions in mind to do that, okay। तो ये real situation होगी, ये वाली real नहीं है, ठीक है। If my family agrees we will go to Hyderabad, good। If he runs he will fall, okay। If the road block I will not be able to come। If tomorrow is my tournament I will win the match, good। If you win that match I will treat you, okay। If the course finish we will miss the teacher, okay that's good Sidra। I will have money I will, nahi, if I have money I will buy a new phone, good, that is also a good sentence। if you eat more, at नहीं होगा रिबा, if you eat more you will become fat, ये तो बिल्कुल रियल चीज़ है ना, जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। if I reach on time I will catch the thief, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें हामिद, रीच आएगा, ठीक है। इफ आई चेक पेपर्स देन आई विल प्रिपेयर रिजल्ट टुमारो, ओके गुड। ओके नाउ क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशनल, ये वाले कंडीशनल सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं ये वाले, ठीक है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में सब कुछ अनरियल होता है, इमेजिनरी होता है, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, फैंटेसी वर्ल्ड है, ठीक है। सो यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं इफ़ आई वन द लॉटरी, इसका मतलब ये आपको लॉटरी जीतने का खुद ही कोई भरोसा ही नहीं है आपको कि मैं जीतूंगा, यू आर जस्ट टॉकिंग। तो आप कह रहे हैं इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं ज़रा बताइए चैट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो देखें, इफ़ के साथ जो क्लॉज आता है देयर वी यूज पास्ट सिंपल टेंस
and the other clause will be of would or base form. would के साथ base form, जैसे if I won the lottery I would travel the world. ठीक है. अच्छा, उजैर ने बनाया था ना, आई थिंक अब्दुल्ला ने बनाया था. इफ आई गॉट अ चांस आई वुड गो टू कश्मीर. ठीक है, ये इसमें आ जाएगा. इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड बी रिच टुडे. इफ यू हैड वर्क. अच्छा उजैर, आपने जो बनाया ना, ये सेकंड कंडीशनल में नहीं है, ये थर्ड कंडीशनल में जा रहा है, क्योंकि आप पास्ट की वो बात कर रहे हैं जो कि गुजर चुकी है, और उसके बारे में आप कह रहे हैं कि अगर तुमने मेहनत करी होती ना तो ऐसा नहीं होता, तो आज को तुम बहुत अमीर होते. ठीक है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन डन, जो कि गुजर चुकी है. ठीक है, ओके. इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास द एग्जाम. ओके, इफ आई वर अ मिलियनियर आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. ओके ओके. और क्लास इसमें एक और ट्विस्ट है, और वो ये है कि यहाँ पर हम आई के साथ वर यूज़ कर सकते हैं इन द सेकेंड कंडीशनल. वरना आई के साथ हमने क्या पढ़ा है, इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं. हम कहते हैं आई वॉज गोइंग, बट हेयर वी कैन यूज़ आई वर. इफ आई वर अ प्रिंसेस, इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो यू कैन यूज वर विद द आई बिकॉज इट इज टोटली इमेजिनरी सिचुएशन. इफ आई गॉट अ लॉट ऑफ मनी आई वुड आएगा, सिद्रा विल नहीं आएगा. आई वुड गो टू स्विट्जरलैंड. गुड. निघत कह रही है इफ आई वर्कड हार्ड. निघत इसमें वर्क के साथ पास्ट फॉर्म आएंगी. ठीक है, इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड गेट सक्सेस. ओके okay, so class, you will be telling me the examples. Okay, so these are two conditional sentences, okay, that we used mostly in our speaking. Now we are going to speak something. There is a speaking card. Okay, I would be asking you one question from that and you are going to reply me. Acha, all the questions are in the imaginary situation that is linked with the second conditional sentence जो कि हमने अभी पढ़े. ठीक है, so I'm going to open up your mics and you are going to tell me, if you had the chance to be rich, what good things would you do? Yes. Yes, class, you can tell me on the mics. Yes. What happened? Hello, this is Abdullah Tahir. Could you hear me, ma'am? Yes. Thank you. If I have a chance to be rich, I will help the people, the needy people who needs my help, and will travel the world. Okay, that's good. Yes, class, hurry up. We have many other questions too. Hurry up, reply. Nobody wants to reply. If I क्या था सेंटेंस मैम फ्लड के लिए? If I had the chance to be rich, I would do. If I had the chance to be rich, I would do many social work for the people who are needy. Okay, good. If I had a chance to have lot of money, I will help the needy people. Okay. Yes, class. If I had the Yeah. if I had the chance to visit, I would go to Umrah, Okay. Saudi Arabia. If I had a chance to be rich, then I would travel worldwide. Okay. Now, class, next question is there, and that is, if you could be a famous person in history, who would you be? This one.
For example, I can say if I could be a famous person in history, I would be Fatima Jinnah. Okay. If I would be a famous person in history, I would be Begum Rana Liaquat Ali. Okay, good. You would be my friend then. Okay. Yes, class, hurry up. Famous. If I could be a famous person in history, I would be Qaid Azam. Okay. Okay, good, no problem. Okay. Yes, class, one last question, and that is if you had to eat the same food for a month, what would you choose? One food for the whole month. Yes, so what would you choose? Pizza. What? Sidra? I would choose meat. Okay, good. Good Pizza. choice. Pizza. Okay, Sindra. Okay. Yes, class. Rest of the students, hurry up. I will choose biryani. Okay. I would bean salad. Okay. That's a good choice. I would choose meat. Yeah, Abdullah. Okay. I would choose vegetables. Vegetables. I would choose pasta. Pasta. You can eat pasta for the whole month. Yeah, I love. Okay. Okay. So, class, we are moving to the next slide, and that is also about the American slang language. Okay, so class, American slang language is the language that is used commonly, just like we are talking at our home or we are talking with our friends, just like हम कहते हैं ना, अरे यार ये क्यों हो गया यार, मतलब इस तरह की जो लैंग्वेज होती है हम अपने ऑफिस में बॉसेस के साथ ये यूज़ नहीं करते. So that is related with the slang words and language. Okay, so there are some slang words and there is a list there. Okay, just like that कि आप guys कहते हैं या friends कहते हैं तो हम dude कह सकते हैं, हम bro कह सकते हैं, just like that. ठीक है, for using या for telling about something in the sentence about the car, so you can use ride. Other than that, ride हम use करते हैं for bike riding. कार के लिए riding use नहीं होती, but in the slang words you can use ride for the word car. ठीक है, जैसे हम कहते हैं I am sorry, oh that is my mistake, so इसकी जगह आप कह सकते हैं oh my bad, my bad. Okay, so that is an unprofessional यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो कि आप कैजुअली यूज़ कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ लिस्ट. आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस कार्ड टू द पीपल देयर ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो यू कैन जस्ट take a look there. Okay, now class, it's time to say goodbye to everybody. Thank you so much from my side and wish you best of luck because this is our last class, and after that we will not be meeting online just like that. You all will be connecting there on the WhatsApp group. You all will be getting all the notifications from DSC management about the certifications and earning opportunities there. So please be active in the group. Okay, and rest of the things, if you want to say something, so you can just tell me there. Okay, yes, Ma'am, I wanted to say something, which is thank you so much for conducting all these classes and making us educated. And I have a question that I have not completed all the lectures and assignments due to the work commitments, but can I still qualify or can I receive the certification? yes, of course, because you are there in the classes, in few classes, but you are there, no? Yeah, ma'am. Yeah, so that is only the thing that you are going to do the practice. Okay,
Okay, class, any other thing you want to ask me? We have 3 minutes left, so we can just talk. Ma'am, I have shared my assignments. Kindly check that. Okay. Okay, Ma'am, class. I'll miss your energetic voice. Okay, Your thank you so much. motivation, your voice motivated us very much. Okay, thank you so much. I'm also, inspired We all miss you, by one Jasmine. of my teacher. That's why my voice is like that. She was full of energy और वो इस तरह पढ़ाती थी साइंस कि बस मजा आ जाता था. तो just like that, I just copied her. Okay, I and just class, want to yeah. so much. I really enjoyed these classes and these sessions, and I have learned more. And these are so beneficial for us. Inshallah. Okay, really good. Okay, only the thing is that you will have to do the practice of your English, okay? Because English is not that thing कि आपने एक दफ़ा सीख ली and after that you just quit. You will have to continue your practice, okay? Watch English videos, movies, songs, whatsoever you wanna do. You can just do, okay? And do practice of your speaking, do practice of the native style, and everything what you can do, okay? And I've told you many things there, many activities there, so you can just follow that. Because speaking English can take years I'm talking about, okay? And it can also be improved in just few days with the proper strategy. So you will have to follow the proper strategy what I have told you, okay? Okay, class. So I think it's time to say goodbye to everybody. Hopefully you enjoy these lessons, and please remember me in your prayers, okay? Thank you so much from my side. Allah Hafiz. Allah.